یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ سنیچر 13 دسمبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جنگ بندی پر راضی ہو گئے، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ We've solved 8 wars. Think of it, 8 wars have been solved. Although Thailand and Cambodia, I think I'm going to have to make a couple of phone calls on Thailand, but we'll get that one back on track. ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی سے متعلق اعلان کے باوجود تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جھڑپیں جاری۔ غزہ میں حماس مخالف ملیشیا کے نئے رہنما کی دھمکی، کہا ہم اپنا اصل چہرہ دکھائیں گے۔ غزہ میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم، وزارت صحت کا 12 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ۔ اجراء اكلنا شربنا خيامنا يعني خيام مش خيام حتى الخيام هذه مش خيام۔ گرم جوشی، مصافحہ اور طویل انتظار۔ جانیے ترکمانستان میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر پیوتن کی ملاقات کے دوران کیا ہوا؟ اقوام متحدہ کے عہدیدار کا پاکستانی حکومت سے عمران خان کی قید تنہائی فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ یہ بھی جانیے کہ کیا فیض حمید کے بعد اب سابق وزیر اعظم عمران خان کی باری ہے؟ جو تھارا پیرا ISPR کی پریسر میں اس سے لگتا ہے کہ عمران خان اور فیض حمید کا اس سلسلے میں اب باری بالکل آئے گی۔ امن کا نوبیل انعام جیتنے والی نرگس محمدی ایران میں پرتشدد طریقے سے گرفتار۔ پاکستان اور بائنینس کے درمیان سرکاری اثاثوں میں بلاک چین کے استعمال پر مفاہمتی یادداشت۔ جانیے اس قیمتی موبائل فون کے بارے میں جسے فیس بک فرینڈ شازیہ کی بجائے اس کا بھائی لے اڑا۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات اور خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے وزرائے اعظم جنگ بند کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ بدھ کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری ایک پیغام میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے تھائی لینڈ کے وزیر اعظم اور کمبوڈیا کے وزیر اعظم کے ساتھ فون پر بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے تمام جارحیت روکنے اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی مدد سے میرے اور تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان طے پائے گئے امن معاہدے پر لوٹنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ We've solved 8 wars. Think of it, 8 wars have been solved. Although Thailand and Cambodia, I think I'm going to have to make a couple of phone calls on Thailand, but we'll get that one back on track. But think of it, we've solved 8 wars. That's never happened. And more Americans are working today than ever before in the history of our country. We've never had. یاد رہے کہ اکتوبر کے اواخر میں صدر ٹرمپ کی موجودگی میں تھائی لینڈ کے وزیر اعظم انوتین چرن ویراکول اور کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن سین نے ایک مشترکہ امن معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی ختم ہو گئی تھی۔ تاہم گزشتہ کئی روز سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک بار پھر سے مسلح جھڑپیں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ بدھ کے روز جاری پیغام میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سڑک کنارے نصب بم جس کے نتیجے میں متعدد تھائی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے، دراصل ایک حادثہ تھا۔ تاہم تھائی لینڈ نے اس کے باوجود بہت سخت جوابی کارروائی کی۔ دونوں ممالک امن اور امریکہ کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ خیال رہے کہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے موقع پر صدر ٹرمپ نے کمبوڈیا کے ساتھ تجارتی معاہدہ اور تھائی لینڈ کے ساتھ نایاب معدنیات کا معاہدہ کیا تھا۔ اس وقت ان کا کہنا تھا کہ جب تک کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان امن قائم رہے گا، امریکہ ان کے ساتھ بہت ساری لین دین کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ بندی پر رضامندی کے بیان کے بعد بھی دونوں ملک کی افواج کے درمیان سنیچر کی صبح لڑائی جاری رہی۔ تھائی وزیر اعظم انوتین چرن ویراکول کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو بتایا ہے کہ جنگ بندی تب ہی ممکن ہوگی جب کمبوڈیا اپنی تمام افواج واپس بلا لے اور بارودی سرنگیں ہٹا دے۔
सोशल मीडिया पर जारी बयान में उनका कहना था कि थाईलैंड उस वक्त तक फौजी कार्रवाइयां जारी रखेगा जब तक वो अपनी सरजमीन और लोगों की हिफाजत यकीनी ना बना ले। आज सुबह के हमारे इक़दामात इसका वाज़ेह ऐलान है। थाई अफवाज की जानिब से मुतअद्दिद मुकामात पर कब्जे के लिए रात भर गोलाबारी जारी रही। ताज़ा तरीन लड़ाई में अब तक कम अज़ कम 21 अफराद हलाक हो चुके हैं और मजमूई तौर पर दोनों अतराफ के लाखों अफराद को नकल मकानी करना पड़ी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि थाईलैंड और कंबोडिया के वज़राए आज़म जंग बंद करने पर राज़ी हो गए हैं। गजा में हमास मुखालिफ मुसल्ह गिरोह पॉपुलर फोर्सेस की क़यादत गस्सान दोहिनी ने संभाल ली है, जिन्होंने ऐलान किया है कि उनका गिरोह हमास के खिलाफ मज़ीद जारिहाना हिकमत अमली इख्तियार करेगा। दोहिनी ने कहा है कि हम अपना असल चेहरा दिखाएंगे और आखिरी दहशतगर्द तक लड़ाई जारी रहेगी। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब ग्रुप के साबिक सरबराह यासिर अबू शबाब 3 दिसंबर को रफ़ा में कबायली झड़प के दौरान हलाक हो गए। इस्राएली मीडिया के मुताबिक दोहिनी इस वाक़े में ज़ख्मी हुए थे और इलाज के लिए इसराइल मुंतकिल किए गए थे। हमास नवाज ज़राए अबू शबाब की हलाकत को इसराइल के लिए बड़ा धचका करार दे रहे हैं, क्योंकि इसराइल मुबैना तौर पर गजा में हमास मुखालिफ मुकामी मलेशियाओं पर इन्हिसार कर रहा था। गस्सान दोहिनी माजी में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सिक्योरिटी अफसर रह चुके हैं, बातज़ा हमास के सख्त मुखालिफ बन गए। फ़लस्तीनी मीडिया और हमास का इल्ज़ाम है कि उनका गिरोह इसराइल के साथ ताउन करता है, जबकि दोहिनी इसकी तरदीद करते हुए खुद को गजा के अवाम के लिए उम्मीद करार देते हैं। माहिरीन के मुताबिक अबू शबाब की हलाकत और दोहिनी की क़यादत में सख्त बयानात गजा में ताकत के तवाज़ुन, इसराइल के जंग के बाद के मंसूबों और अंदरूनी फ़लस्तीनी कशीदगी को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम वजारत सेहत के मुताबिक गजा में मौसम सरमा में होने वाली तूफ़ानी बारिशों से कम अज़ कम 12 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि खैमों में मुकीम अफराद का निज़ाम ज़िंदगी भी शदीद मुतासिर हो रहा है। BBC वेरीफाई ने गजा में मौसम सरमा में आने वाले तूफ़ानों के असरात का जायज़ा लिया है। इसके लिए एक ख़ास किस्म की सैटेलाइट तस्वीर इस्तेमाल की गई, जिन्हें सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी सार कहा जाता है, और इससे ये जानने में मदद मिलती है कि जनूबी गजा के कौन से इलाके मुमकिना तौर पर तूफ़ानी बारिश से मुतासिर हुए हैं। ये रडार पानी की मौजूदगी को ख़ास तौर पर मौसर अंदाज में ज़ाहिर करता है। ये टेक्नोलॉजी उस वक्त भी फ़ायदेमंद होती है जब बादल बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि रडार बादलों को चीर कर डाटा जमा कर लेता है। मौसम सरमा की इन शदीद बारिशों के बाइस जंग ज़दा इलाके में बेघर या खेमे में मुकीम अफराद की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है, जबकि बुजुर्ग अफराद और बच्चे सर्दी और बारिश से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। قمنا على صوت زي انفجار، فطلعنا لقينا بيت جيراننا كان متهاوي من شدة القصف وشدة الرياح والأمطار، تم سقوطه بالكامل. الحرب اللي لها 2 واحنا فيها، الناس فيش لهم مأوى غير انهم البيت هذا اللي كان اصلا محروق. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान के दारुल हुकूमत अशगाबाद में मुनक्कद बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए अमन व एतमाद में शिरकत के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। इस आलमी फोरम में उन्होंने तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के सदूर से 2 तरफ़ा, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें की हैं। फोरम के दौरान शहबाज शरीफ और सदर पुतिन के दरमियान मुसाफा और मुख्तसर गुफ्तगू की वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई हैं। रूसी मीडिया में यह दावा सामने आया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए इंतज़ार करना पड़ा। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से ये तफसीलात शेयर नहीं की गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर पुतिन के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, मगर रूस के खबर रसा इदारे RT इंडिया ने ज़रूर सोशल मीडिया पर कुछ दावे किए हैं, जिस पर एक्स पर मुतअद्दिद लोगों ने अपनी आरा का इजहार भी किया है। RT इंडिया ने एक्स पर 14 सेकंड्स की एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी झंडे के साथ रखी गई एक कुर्सी पर बैठे हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके बराबर में रूसी झंडे के साथ लगाई गई एक कुर्सी खाली पड़ी है। इस वीडियो में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार और वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ को भी देखा जा सकता है।
RT इंडिया ने दावा किया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रूसी सदर पुतिन का 40 मिनट तक इंतज़ार करते रहे और फिर उठकर उस कमरे में चले गए जहां रूसी सदर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। BBC उर्दू ने इस मामले पर वजाहत के लिए पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा से रब्ता किया तो बताया गया कि ये गलत फहमी थी और RT इंडिया ने इसे डिलीट कर दिया है। दूसरी जानिब RT इंडिया ने भी अपनी पोस्ट डिलीट करने की तस्दीक कर दी है, लेकिन क्रेमलिन और कुछ रूसी नशरियाती इदारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर पुतिन की मुलाकात की मुख्तसर तफसीलात जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी, गज़ा में अमन और मौसमियाती तब्दीली जैसे अहम मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक खसूसी नुमाइंदे ने खबरदार किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के बानी इमरान खान को जिन हालात में जेल में रखा गया है वो गैर इंसानी या तौहीन आमेज़ सलूक के ज़ुमरे में आ सकते हैं। जुमे के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की तशद्दुद से मुतल्लक़ खसूसी नुमाइंदा LS जिल एडवर्ड्स ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हिरासत के दौरान गैर इंसानी और नारवा सलूक की खबरों के मुतल्लक़ फौरी और मौसर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा करती हूँ कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान की नज़रबंदी पूरी तरह से बैनुल-अक़वामी उसूलों और मयारात के मुताबिक हो। याद रहे कि रवा साल सितंबर में इमरान खान की कानूनी टीम ने साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया के साथ जेल में नारवा सलूक के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के एक खसूसी नुमाइंदे से रुजू किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खसूसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 26 सितंबर 2023 को रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने के बाद से इमरान खान को मुबैना तौर पर हद से ज़्यादा कैद तन्हाई में रखा गया है, जहां उन्हें दिन में 23 घंटे उनके सेल में रखा जाता है, जबकि बैरूनी दुनिया तक उनकी रसाई भी इंतहाई महदूद है। उनका मजीद कहना है कि इमरान खान के सेल की मुबैना तौर पर कैमरे से मुसलसल निगरानी की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार का कहना है कि इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तवील या गैर मुअय्यना कैद तन्हाई ममनू है। उन्होंने मुतालबा किया कि बिना किसी ताख़ीर के इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म की जाए। इस मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कोई बयान सामने नहीं आया है। ताहम माजी में बारहा हुकूमती नुमाइंदों की जानब से दावा किया जाता रहा है कि इमरान खान को जेल में दूसरे कैदियों की निस्बत कहीं ज़्यादा सहूलतें दस्तियाब हैं। ख्याल रहे कि रवा माह के आगाज़ में तकरीबन 1 महीने बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात मंगल को उनकी बहन उज़्मा खान से करवाई गई थी, जिसके बाद सहाफ़ियों से मुख्तसर बात करते हुए उज़्मा खान का कहना था कि इमरान खान की सेहत ठीक है, मगर वो बहुत गुस्से में थे और कह रहे थे कि उन्हें ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उज़्मा खान के मुताबिक उनकी इमरान खान से मुलाकात 20 मिनट पर मुहित थी और उन्हें उनके भाई ने मज़ीद बताया कि उन्हें पूरा दिन कमरे में बंद रखा जाता है, सिर्फ थोड़ी देर कमरे से निकलने दिया जाता है। सामीन, साबिक़ DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दिए जाने के बाद सोशल मीडिया और सियासी हलकों में इदारा जाती एहतसाब, ताकत और सियासत में अस्करी किरदार पर नई बहस छिड़ गई है। मुबस्सरीन के मुताबिक माजी में ISI के सरबराहान को पेशावर जर्नैल करार दिया जाता रहा, मगर रिटायरमेंट के बाद उन्हीं पर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात भी लगते रहे। जनरल फैज़ हमीद के मामले में नाकदीन के मुताबिक उन्हें मुबैना तौर पर वली अहद समझने की फ़ज़ा बनाई गई, जो फ़ौजी रिवायत से मुतसादम थी। सज़ा को एक तरफ फ़ौज के अंदर मजबूत एहतसाब की मिसाल करार दिया जा रहा है, तो दूसरी जानब इसे कौम के लिए एक सख्त पैगाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। याद रहे कि फैज़ हमीद का ट्रायल तकरीबन 1.5 साल जारी रहा। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम एडवोकेट। हम उनसे ये जानते हैं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार क्या होता है और क्या इससे पहले भी इस अमल में इतना अरसा लगा जितना फैज़ हमीद के केस में लगा है। नहीं, कई फील्ड कोर्ट जनरल कोर्ट मार्शल हुए जो इससे भी तवील थे। एक्चुअली होता ये है कि कानून का तकाजा पूरा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस केस में जब इनके खिलाफ एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आ गई, जो पूरी दुनिया ने भी सुनी, कंप्लेंट जो थी उसके ऊपर फिर बकायदा एक इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद फिर इसकी कानून ये कहता है कि फिर समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होती है। उसमें तमाम जो गवाहान होते हैं वो हलफ के ऊपर अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं और वो बयान रिकॉर्ड करने के बाद वो सारे बयानात मुल्ज़म को दे दिए जाते हैं कि ये जनाब एविडेंस आपके पास खिलाफ आ चुकी है। और मजे की बात है वो मुल्ज़म की मौजूदगी में ही रिकॉर्ड होती है
اس کو بھی حق حاصل ہوتا ہے کراس ایگزامن کرنے کا، اعتراض کرنے کا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ڈاکومنٹ جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اوپر پھر ملزم سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اپنا بیان دینا چاہتے ہیں، تو ملزم بھی بیان دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر اس کی روشنی میں ایک چارج شیٹ بنائی جاتی ہے، اور اس چارج شیٹ کے اوپر جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ کورٹ کنوین کرتی ہے، اس کو کنویننگ اتھارٹی کہتے ہیں. اور وہ پھر ایک پریزیڈنٹ اور اس کے ساتھ 2 ممبرز اور ایک جج ایڈوکیٹ جنرل ڈپارٹمنٹ کا ریپ بنا کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اور اس کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کہتے ہیں، FGCM. اور اس طرح وہ پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے. صحیح. اور یہاں بھی دیکھا جائے تو ان کو باقاعدہ رائٹ دیا گیا کہ یہ آپ کے خلاف چارجز ہیں، اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی کونسل لانا چاہتے ہیں تو وہ پوری ایک ٹیم کونسلز کی لے کر آئے، اور انہیں پراپر جو ہمیں پتہ چلا پراپر اس کا ڈیفenس کیا، اس کو آرگو کیا، ان کو کراس ایگزامن بھی کیا. انعام رحیم، آپ کا شکریہ. سامعین، سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں ISPR کی جانب سے جاری اعلامیے کے آخری حصے پر بھی بات ہو رہی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات میں مداخلت کے پہلو علیحدہ طور پر دیکھے جا رہے ہیں. اس پیراگراف کا کیا معنی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض کے بعد اب عمران خان کی بھی باری آنے والی ہے؟ جانتے ہیں عسکری امور کی ماہر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے. لگتا تو یہی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ابھی تو فیض حمید کی بھی باری ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ان کی انگیجمنٹ تھی اور جو ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ مئی 9 کا جو منی ریبیلین تھا PTI کا، جس میں فوج کی فیملیز اور فوج کے لوگ بھی کچھ شامل تھے، تو لگتا ہے کہ اس کا حساب کتاب ابھی ہونا باقی ہے. ان کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن یہ جو آخری ایک جو تھا نا پیرا ISPR کی پریسر میں، اس سے لگتا ہے کہ عمران خان اور فیض حمید کا اس سلسلے میں اب باری بالکل آئے گی. اور میرے خیال میں اس پریسر کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ جو DG ISPR نے 2-3 دن پہلے کیا، ایک جو پریسر کیا جس میں انہوں نے مینٹلی انویل عمران خان کو کہا اور بہت ایسی باتیں کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی DG ISPR کو. لیکن اس سے لگ یہ رہا تھا کہ ان کا موڈ PTI کو مزید کسنے کا اور عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اب بالکل سودا بازی والا. میرا تو اپنا خیال تھا کہ پہلے بھی فوج اور عاصم منیر سودا بازی ان کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن ایک بات جو بالکل obvious ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی پوزیشن کنسالیڈیٹ ہوئی فوج کے اندر، اب وہ پوری ملٹری کے سربراہ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اندرونی طور پہ کوئی چیلنجز نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں، زیرو. اور ایکسٹرنلی بھی جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اب وہ امریکہ کے بھی دلبر ہیں، فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور جو ان کو مڈل ایسٹ میں ان کا ایک ہے پذیرائی ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایک ایکسٹرنل اور انٹرنل سپورٹ ہے اس وقت، تو لگتا ہے کہ وہ یہ جو ورڈکٹ تھا، آپ کو یہ بھی یاد میں کراتی چلوں کہ یہ فیصلہ اس سلسلے میں دیکھیں، ایک تو ٹاپ سٹی کا کیس ہے کہ گرافٹ اور کرپشن اور مس یوز آف اتھارٹی کا مسئلہ ہے، وہ بالکل وہ تو کلیئر ایک کیس ہے. پھر یہ ہے کہ جو ان پہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی، میرا نہیں خیال کہ وہ انہوں نے کوئی کسی کو باہر والوں کو کوئی دیا ہوگا. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، وہ تو میرے خیال میں باہر اگر وہ کرتے تو شاید ان کی معافی ہو جاتی. مت بھولیں کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے نیوکلیئر سیکرٹس شیئر کیے ہیں شاید امریکہ کے ساتھ یا جرمنی میں جب وہ تھے، تو ان کی تو معافی ہو گئی. جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کی سزا جو تھی وہ ختم کر دی کہ پہلے باجوہ نے کم کی. تو یہ تو بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جو پولیٹیکلی وہ رول پلے کر رہے تھے، اس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ورڈکٹ جو ہے وہ اناؤنس اس وقت کیا گیا جب عاصم منیر صاحب کانفیڈنٹ ہوئے کہ بھئی اب وہ ان کے پاس انٹرنلی وہ ایک ایبسولوٹ پاور ہے، کوئی چیلنج نہیں کرے گا. تو
वर्डिक्ट बाहर आ गया। डॉक्टर आयशा सिद्दीका, आपका बेहद शुक्रिया। सामीन, सन 2023 में अमन का नोबेल इनाम जीतने वाली मारूफ ईरानी इंसानी हुकूक और ख़वातीन की कारकुन नरगिस मोहम्मदी को ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मशरकी शहर मशहद में मुबैना तौर पर पुरतशद्दद तरीके से गिरफ्तार कर लिया है। नरगिस फाउंडेशन और उनके शोहर तकी रहमानी के मुताबिक गिरफ्तारी एक मेमोरियल तकरीब के दौरान अमल में आई, जहां दीगर कारकुनान को भी हिरासत में लिया गया है। नोबेल कमेटी ने नरगिस मोहम्मदी की गिरफ्तारी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए ईरानी हुकाम से उनकी फौरी और गैर मशरूत रिहाई, मुकाम हिरासत की वजाहत और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। ईरान की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाबिता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। नरगिस मोहम्मदी इससे कबल भी तवील अरसा एवन जेल में कैद रह चुकी हैं और दिसंबर 2024 में उन्हें तिब्बी बुनियादों पर आर्जी रिहाई मिली थी। फाउंडेशन के मुताबिक वो अब तक 13 बार गिरफ्तार हो चुकी हैं और उन्हें मजमूई तौर पर 36 साल कैद और 154 कोड़ों की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। पाकिस्तान और आलमी डिजिटल करेंसी कंपनी बाइनेंस के दरमियान सरकारी मालियाती असासों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। मुआहिदे पर वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और बाइनांस के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड टैंग ने दस्तखत किए। इस याददाश्त के तहत सरकारी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और दीगर हुकूमती असासों को ब्लॉकचेन के ज़रिए ज़्यादा शफाफ और मौसर अंदाज में मुनज़्ज़म करने के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इस मनसूबे का मकसद सरमायाकारी तक रसाई बढ़ाना और मालियाती निज़ाम में शफाफियत लाना है। वज़ारत ख़जाना ने वाज़ेह किया है कि ये इब्तिदाई मरहला है और किसी हतमी फैसले के लिए कानूनी मंजूरी दरकार होगी। बाइनांस पाकिस्तान को तकनीकी मुआवनत, तरबियत और मुशावरत फराहम करेगी, जबकि हतमी मुआहिदे पर आइंदा 6 माह में बातचीत मुतवक्के है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लाहौर की कंज्यूमर कोर्ट के एक फैसले पर बहस जारी है, जिसमें अदालत ने एक कोरियर कंपनी को मुतासिरा सारिफ को 1,24,000 रुपये बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। इस फैसले को सार्फिन के हकूक़ के हवाले से एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अदालती हुक्म के मुताबिक सारिफ की शिकायत दुरुस्त साबित होने पर कोरियर कंपनी को नुकसान के अजाले का पाबंद बनाया गया है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल ज़ेरे बहस है कि आखिर ये मामला क्या था और किन बुनियादों पर अदालत ने कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया। तफसीलात जानिए साद सोहेल से। तकरीबन 3 साल पहले 2022 में एक सारिफ सदीक घुमन ने कोरियर कंपनी TCS के जरिए मोबाइल फ़ोन बुक करवाया। ये बुकिंग सेल्फ कलेक्शन की बुनियाद पर की गई थी, जो वाज़ेह हिदायत के मुताबिक सदीक घुमन की फेसबुक फ्रेंड शाजिया सईद ही ने कलेक्ट करना था। सदीक घुमन ने भेजे गए इस मोबाइल फ़ोन की इंश्योरेंस भी करवाई थी। चंद रोज़ बाद शाजिया ने सदीक घुमन को मैसेज किया कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन कोरियर कंपनी से ले लिया है। उसके बाद उन्होंने सदीक घुमन से हर तरह का राब्ता मुनक़ता कर दिया। जब राब्ता मुनक़ता हुआ तो सदीक ने TCS से पूछा कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन किसके हवाले किया था, जिस पर TCS ने उन्हें बताया कि मोबाइल शाजिया के भाई आमिर को दिया गया था। उनके पास आमिर नामी शख्स आया और उसने कहा कि वो शाजिया का भाई है, शाजिया यहाँ नहीं आ सकती तो वो मोबाइल उन तक पहुँचा देंगे। सदीक घुमन का कहना था कि उन्होंने सर्विस ही इस बुनियाद पर ली थी कि मोबाइल शाजिया की शनाख्त करके उसके हवाले किया जाए। इस पर उन्होंने TCS को कानूनी नोटिस भिजवाया कि मोबाइल गलत बंदे को दे दिया गया था। TCS ने इस शिकायत के बाद आमिर नामी शख्स से फ़ोन वापस ले लिया, मगर सदीक घुमन ने हर्जाने का मुतालबा किया, जो पूरा ना होने पर उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया। इस केस का फैसला उनके हक में आया। उनका कहना था कि दरअसल मैं मिसाल कायम करना चाहता था, जिसके लिए मैंने बरसों मेहनत की। कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोरियर कंपनी ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील भी दायर की, ताहम अदालत ने कंज्यूमर कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक TCS कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि वाकया मुद्दई की अपनी गलती थी कि उन्होंने जिस खातून को मोबाइल भेजा था उसके बारे में उन्हें कुछ मालूम ना था। मोबाइल अब कंपनी के पास मौजूद है, जो कंपनी ने आमिर से वापस ले लिया था, लिहाजा नुकसान का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि TCS ने तस्लीम किया कि मोबाइल फ़ोन आमिर को दे दिया गया था, जिसको असल में डिलीवर नहीं करना था। कंपनी वो मोबाइल सिर्फ उसको देने की पाबंद थी जिसके बारे में हिदायत दी गई थी, और अगर वो शख्स या फेसबुक फ्रेंड जाली थी तो कंपनी मोबाइल वापस भेज देती। और सदीक घुमन ने पहले सिर्फ 24,000 रुपये हर्जाना मांगा था, लेकिन कोरियर कंपनी ने उन्हें अदालत के चक्कर लगवाए, इसलिए 1,24,000 रुपये हर्जाना बिल्कुल जायज़ है।
सेल्फ कलेक्शन के तस्वर का तकाजा ये है कि पार्सल सिर्फ और सिर्फ सख्त शिनाख्त की तस्दीक के बाद ही असल शख्स को दिया जाए, खास तौर पर जब सामान कीमती हो और इंश्योरेंस कवर मौजूद हो। शिनाख्त की तस्दीक ना करना और पार्सल किसी और के हवाले कर देना मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी है और गफलत भी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।